Hello students and welcome to the fifth lecture of complex number. In the last class we studied about the modulus and conjugate of complex number, and we also studied the argument of a complex number. Generally जो modulus of a complex number क्या होता है? So if z is equals to x plus iota y, then modulus of z is equals to x square plus y square under root, and its conjugate is equals to x minus iota y. इसको हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ चुके हैं. तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट ज्योमेट्रिकली? x plus iota obviously is a point P whose coordinates is x comma y, means x plus iota y this is. So x, this is the real axis and this is the imaginary axis. At this point O is the origin. This OP denote the distance. OP is the modulus of the z, and this part is x, and obviously this is your y. And this theta, the angle between OP and the positive direction of x-axis, is the argument of z. In the last class we studied the formula of the argument, that what the formula of argument of z. Argument of z in the various quadrant. It is in the first quadrant, it is simple tan inverse of y by x का mod in the first quadrant में, this is first quadrant के लिए, and for second quadrant this is pi minus tan inverse of y by x का mod second quadrant के लिए, and minus pi plus tan inverse y by x का mod, this is for third quadrant ये quadrant है, and minus of tan inverse of y by x का mod, this is for fourth quadrant. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज ये फॉर्मूला भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. ओके, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म लास्ट में थोड़ा सा हिंट्स दिया था मैंने कि पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. पोलर फॉर्म, ओके. सो पोलर फॉर्म के लिए वी नीड टू थिंग्स. फर्स्ट इज द मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, and second is the argument of a complex number. We can find the modulus by this simple formula and argument by this whole formula. ठीक है, हमें तो जनरली हाउ कैन वी डिराइव द पोलर फॉर्म. देखो, पोलर फॉर्म डिराइव करने के लिए हम डिराइव भी किए थे, बहुत जल्दी कर देते हैं. सो दिस इज योर पी एक्स प्लस आयोडा वाई, and this z is equals to p plus a x plus iota y. So obviously this is O phi, let this point is Bm, this OM is x unit, real axis na, so this is x unit and this will be y unit. Here mod of z is equals to x square plus y square. It is also denoted under root, is also denoted by r. इसको हम r भी कहते हैं. Modulus को, modulus is also denoted as r. Then here we can say the OM by OP, it is the theta and it is the argument of the complex number, argument of z. Basically here the argument of z is equal to theta. We can say x by r is equals to cos theta. So x is equals to r cos theta, and similarly y by r is equals to sin theta. So y is equals to r sin theta. Okay, so z is basically x plus iota y, and this can be written as r cos theta plus iota r sin theta. Taking r as common, cos theta plus iota sin theta. Taking r as common, this will be r cos theta plus iota sin theta.
and this form is basically is the polar form. I can write here. So z is equals to r cos theta plus iota sin theta is the polar form. इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका मॉड्यूलस चाहिए और उसका आर्गुमेंट चाहिए. अगर दो चीज़ मिल गया तो सिंपल इसी फॉर्म में पुट अप कर देना है. ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट्स से z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा. 1 plus iota. What is the modulus of this complex number? First, let you tell me what is the modulus of this complex number. What is the real part here? Real part is 1, and what is the imaginary part? Imaginary part is also 1. So in this case, the modulus is 1 square plus 1 square with under root. This will be root 2. So modulus of z is equals to root 2. And what is the argument? Argument of z is equals to here x is also greater than 0, y also greater than 0, so it is lies in the first quadrant. Hence it is lies in the first quadrant. Will we put this formula tan inverse y by x का mod? So it will be tan inverse of 1 by 1. The real part is 1 and imaginary part is also 1. So the argument of z will be, or you can say theta tan inverse of 1, and tan inverse of 1 means where the tan theta is equals to 1. Tan theta कब 1 होता है, and tan theta is 1 for theta is equals to 45 degree. In radian we can say this is pi by 4. So this the polar form of this particular complex number z is equals to r की जगह लिखेंगे मॉडुलस मीन्स रूट 2 टाइम्स रूट 2 टाइम्स थीटा की जगह लिखेंगे उसकी आर्गुमेंट. सो इट विल बी कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4. सो दिस इज द आंसर of this question. So the polar form of 1 plus iota will be root 2 times cos pi by 4 plus iota sin pi by 4. You get it? Okay, note कर लो इसको. Some questions are find the polar form of the following complex numbers. The first one is z is equals to here 2 minus 2 root 3 iota. 2 minus 2 root 3 iota. Okay, so first let's check this complex number lies in the which quadrant. Obviously x is positive and means real part is positive and imaginary part is negative, so it is plus minus. Basically it is fourth quadrant. Which quadrant? Fourth quadrant. Then what is the modulus of this complex number? It will be 4. तो 2 square is 4, इसका square is 12 I think under root. It will be under root of 16. It is 4. So r is equal to simple 4, and theta for fourth quadrant this is minus tan inverse of x by y upon x with the modulus. So it will be tan inverse of y is minus 2 root 3 by 2 modulus. So this is tan inverse of modulus है ना, इस पहले नेगेटिव माइनस, so minus of tan inverse of minus root 3 का mod root 3. ये टोटल रूट 3 हो गया देखो. ठीक है, और tan inverse root 3 is how much? At 60 degree means this is pi by 3, so this is minus pi by 3. So the argument of this particular complex number is z is equals to first form is r times cos theta plus iota sin theta, and so this will be r is equals to 4 times cos of minus pi by 3
plus iota sine minus pi by 3. So this is the answer. Now moving on to the second question, z is equals to root 3 minus iota. So obviously कौन सी क्वाड्रेंट है? The real part is positive. Okay, real part is positive and the imaginary part is negative as well. So this is also in the fourth quadrant. इसको कुछ चेंज कर सेकंड बना देते हैं, -√3 प्लस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया ना. तो -√3 प्लस आयोटा, लेट अस सी. ओके, तो दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट व्हाट द मॉडुलस. द मॉडुलस विल बी √3 का इज 4, तो √3 का 3 प्लस 1 अंडर रूट. सो अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2. अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2. एंड व्हाट इज द आर्गुमेंट? आर्गुमेंट ऑफ z का फॉर्मूला इस केस में थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट? पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड. पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड. सो द थीटा, द आर्गुमेंट of z will be pi minus tan inverse of y by x का मॉड, मतलब y is 1 and this is -√3. So 1 by -√3 का मॉड, बेसिकली दिस इज 1 by √3. मॉडुलस हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा ना अंदर. सो tan इनवर्स of 1 by √3 एंड tan इनवर्स ऑफ 1 by √3, 1 by √3 कब होता है? बेसिकली 30 डिग्री में, नहीं. सो दिस इज पाई माइनस पाई बाई 6, इट विल बी 5 पाई बाई 6. तो z इज इक्वल्स टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. सो r इज इक्वल्स टू बेसिकली 2. r इज इक्वल्स टू 2. ओके, 2 टाइम्स cos 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6. ओके, सो दिस इज योर आंसर. This is the answer of the second and third. Fourth is quite easy, my dear students. So question number third is simple. Z is equals to simple 1. In 1 means we can say this is 1 plus 0 iota. 1 plus 0 iota. Obviously we can say this is lies on the x real axis पे है, तो इसकी जो मॉडुलस है obviously 1 है. एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन डिनोट 1 मतलब only lies in this and angle between this and this obviously 0. So theta is equals to 0. Okay, so the form is z is equals to r times 1 times cos 0 plus iota sin 0 is the answer. This is the polar form. And the fourth question is z is equals to minus iota. Minus iota means this is lies in the imaginary axis and below. So here is the minus iota. 0 minus iota. Here is the minus iota. So the modulus is obviously 1 and the argument of z, which is theta, is equals to, in this case measure here, so minus of pi by 2. Minus of pi by 2 हमने बताया था कि हाँ पॉजिटिव रियल नेगेटिव रियल पे और एक्स आयोटा केस में, वेयर एक्स इज पॉजिटिव नेगेटिव केस में आर्गुमेंट बताया था. एक्स पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट पाई बाई 2, एक्स नेगेटिव है तो आर्गुमेंट माइनस पाई बाई 2. एंड पॉजिटिव रियल केस में हाँ आर्गुमेंट इज 0 एंड द नेगेटिव रियल के केस में आर्गुमेंट इज पाई. ओके,
So here is the polar form will be z is equals to 1 times cos of minus pi by 2 plus iota sine of minus pi by 2. So this is your answer to the fourth question. I hope you got it. So pause the video to note it down. So let us discuss some properties of argument. Properties of argument of complex number. Simple properties, generally similarly log की तरह कुछ properties हैं. The first one is argument of z1 times z2 is equals to argument of z1 plus argument of z2. Second property, the argument of z1 over z2, z1 by z2 is equals to basically argument of z1 minus argument of z2. Here you can say in case of multiplication we can extend it. So argument of z1 times z2 times z3 4 times zn is basically argument of z1 plus argument of z2 plus argument of zn. ओके, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुए ईच अदर वो सबका आर्गुमेंट ऐड हो जाएगा, एड अप. फोर्थ प्रॉपर्टी इज द आर्गुमेंट ऑफ z to the power n is as similar as z times z times z times up to n times of z. So this will be n times argument of z. You can compare with this formula और ये सब argument of z, argument of z, argument of z, तो there n argument of z are add up together. So this is n times argument of z. And the fifth one, is the argument of z bar, means conjugate of z is basically minus of argument of z. This is basically argument of okay, so we can say we can extend it, argument of z times z bar is equals to basically 0. कैसे 0 कैसे होगा? दिस विल बी आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार. ना आर्गुमेंट ऑफ z बार विल बी माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, सो इट विल बी हमेशा 0 होता है. एंड द आर्गुमेंट ऑफ z बाय z बार is equals to 2 times argument of z, is equals to 2 times argument of z. Okay, these are some following properties. Basically argument of z1 z2 is equals to argument of z1 plus argument of z2, argument of z1 by z2 argument of z1 minus argument of z2. ये भी इसके साथ सिमिलर है. ओके, ये माइनस होगा पहले, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ z होगा. सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट. Okay, so let's say let z is equals to a plus iota b is a complex number. एक complex number मान ले z is equals to a plus iota b. तो हमें we need to find out under root of z, which is under root of a plus iota b. Okay, let's say under root of a plus iota b is equals to
x plus iota y is another complex number. Okay, let us imagine that the under root of a plus iota b is equals to x plus iota y. इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक इमेजिन करते हैं. इस इमेजिनेशन के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, it will be a plus iota b is equals to x plus iota y का स्क्वायर which is x square plus iota square y square plus 2 iota x y. So basically we have a plus iota b is equals to x square minus y square. कैसे वो iota square is equals to -1, so x square minus y square plus iota times 2xy. Now we can compare the LHS and RHS. Hence these two complex numbers are equal. These two complex numbers are equal. So compare the real part into the real part and imaginary part equals to the imaginary part of the both LHS and RHS. So we can say the x square minus y square is equals to a and 2xy is equals to b. Okay, and 2xy is equals to b. So ये इसका रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका रियल पार्ट a है एंड इसका इमेजिनरी पार्ट 2xy है और इसका इमेजिनरी पार्ट b है. ओके, यू गॉट इट. देन now we need to find out the value. हमें क्या चाहिए? Basically this complex number, we want this complex number. So how can you get this complex number? So we need to find out the value of x and y. हमें x और y की वैल्यू चाहिए. तो इन्हीं दो इक्वेशन से we need to find out the value of x and y. Okay, from this two equation 1 and equation 2. Okay. So we have an algebraic formula, a formula in algebra. What was the formula? A plus b the whole square is equals to a minus b the whole square plus 4ab. This is formula. Okay, don't think this ये है b है, कोई ऐसे फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला है. So from this formula we can say a की जगह x स्क्वायर मान लो, b की जगह y स्क्वायर मान लो. ओके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होगा, ओके, दिस विल बी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम? बस हमने यही किया है कि a की जगह x स्क्वायर लिखा हो और b की जगह वाई स्क्वायर. बस तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. यू गेट इट? ओके, सो वी कैन राइट नाउ. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ऑब्वियसली ए स्क्वायर एंड वी कैन राइट दिस इज, देखो 2xy is equals to b, 2xy is equals to b means 4x square y square is equals to b square. Get it? Because 2xy is equals to b, so 4x square y square is equals to b square. This is whole square, I'm sorry. So this will be x square plus y square will be under root of plus minus under root of a square plus b square plus minus the under root of a square plus b square. Okay, so hence x square plus y square is always a positive quantity
ऑलवेज ए पॉजिटिव। देखो x तो रियल नंबर है ना, x y दोनों रियल नंबर, तो एक्स स्क्वायर भी हमेशा रियल होगा, वाई स्क्वायर भी हमेशा रियल होगा, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, फिर नेक्स्ट नंबर है रियल नंबर। तो इसको हम सिर्फ लेंगे सिर्फ प्लस, मतलब सिर्फ इतना, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इट इज ए। तो यहाँ से हमें अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए है। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस ए है, माइनस ए है। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन x इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, ओके, प्लस माइनस हाफ तो नहीं, 1/√2 इंटू साइन, ओके, 1/√2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ए, एंड y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2 होल रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यू गॉट इट। सो 1/√2 इंटू दिस थिंग, 1 प्लस माइनस। नाउ अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो रहा है। सो देखो इस स्टेप से ये आया, तो ये 2 उधर गया तो 1/2 होगा, और सबका रूट ओवर करेंगे तो 2 का भी रूट ओवर होगा 1/√2, और इसका रूट ओवर ये रूट डाल दिए, यहाँ पे भी रूट डाल दिए, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, हमें x और y को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द साइन, ओके। यूज द और चूज द proper sign of x and y, okay, choose the proper sign of x and y। वो x and और y, वो x और y की जो साइन डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस b के ऊपर डिपेंड करेगा द साइन ऑफ x and y, ठीक है। आई होप तुम आधा लिख लिए होगे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर में थोड़ा सा इरेज करता हूँ, 2-3 लाइन बस हो जाएगा, लिखने में हो जाएगा, आई होप सो। तो कंडीशन यही है यहाँ, इफ b इज पॉजिटिव देन टेक same sign of x and y, and if b is negative, b मतलब कौन सा b पता है? इस b ये प्लस आइटा b वाला नहीं, इस b इमेजिनरी पार्ट। if b is negative then take or choose opposite sign of x and y। तो इसी केस में जो साइन चूज करोगे और आइदर प्लस चूज करोगे और माइनस, लेकिन इस केस में यहाँ x का पॉजिटिव लोगे तो y का नेगेटिव, एंड y नेगेटिव लोगे तो x का पॉजिटिव। ये ऐसे साइन हमें चूज करना है, ओके। जब एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो बेसिकली और थोड़ा सा अगर इसको इलेबोरेट करके लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू इस √2 को अगर इस रूट के अंदर डालें, फर्स्ट x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? बेसिकली मॉडुलस ऑफ z है, तो प्लस माइनस 1/√2 ऑफ रूट के अंदर मॉड ऑफ z प्लस a है ये,
एंड y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2 ऑफ मॉडुलस ऑफ z, सॉरी मॉडुलस ऑफ z माइनस 1। तो यही इतना ही बचा है। इस रूट को अगर अंदर ले जाएंगे रूट के अंदर तो प्लस माइनस इट विल बी z प्लस a/2, दिस इज प्लस माइनस z माइनस a/2। ओके, तो x इज इक्वल टू z प्लस a/2 एंड ये है मॉड ऑफ z माइनस a/2। ओके, ये आप फॉर्मूला के हिसाब से भी याद रख सकते हो। सो द रियल पार्ट यू कैन से a प्लस आयोटा b का जो रूट ओवर है इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, प्लस माइनस फर्स्ट रियल पार्ट मॉड ऑफ z प्लस a/2 प्लस माइनस आयोटा इंटू z माइनस a/2 इसका भी रूट ओवर। यही है बेसिकली, लेकिन ये प्लस माइनस में से एक पेयर यूज होगा। ठीक है, इसका प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे एक ही पेयर यूज होगा। यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस यूज नहीं हो सकता। ये साइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, साइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा देख लो। एक क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाओगे। ओके, नोट कर लो इसको। सो प्रॉब्लम है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ओके वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। ओके, 4 माइनस 3 आयोटा, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड। ओके, आंसर लेट 4 माइनस 3 आयोटा का रूट ओवर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, स्क्वायरिंग करो। देखो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं। पहले मैं सिंपल मेथड से करते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। इस फॉर्मूला में अगर डायरेक्ट पुटअप कर रहे हो तो सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, हम बताएंगे आपको ट्रिक। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ये वर्क नहीं कर रहा हूँ, अगर x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर करोगे तो यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देने से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से तुम कंपेयर कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 2xy इज इक्वल टू -3, 2xy इज इक्वल टू -3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज बेसिकली 2xy का होल स्क्वायर। सो बेसिकली दिस विल बी 16 प्लस, ये 4 है ना तो 16, ये -3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये हो गया कितना 25। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्यों सिर्फ 5 क्यों, प्लस माइनस 5 नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड वाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो जैसे कि तुम ये दिस इज एज सिमिलर एज, अगर a की पावर 4 एक रियल नंबर है 25 है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा, ना कि -5 होगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे सिर्फ 5 होगा। और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 4 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 9 एंड 2y स्क्वायर हो गया 1। तो एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर हो गया 9/2 का रूट ओवर, मतलब 3/√2 नहीं, हाँ 3/√2 प्लस माइनस 3/√2,
और y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2. ओके, सो x इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/√2, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2. सो बेसिकली अभी देखो साइन की बात होगा. ये 2xy नेगेटिव है, मतलब xy भी नेगेटिव, मतलब b हमारा अगर नेगेटिव है तो x अगर पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव और y पॉजिटिव होने से x नेगेटिव. तो इसी केस में जो आंसर होगा आपका, तो 4 - 3 आयोटा का जो रूट होगा इज इक्वल टू, इसका अगर पॉजिटिव लेंगे तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव होने से उसका पॉजिटिव. सो इट विल बी 3/√2 माइनस आयोटा 1/√2 और माइनस 3/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2. इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं. सो 4 - 3 आयोटा का रूट ओवर रूल पे प्लस माइनस अगर ऐसे यहाँ पे दे दोगे तो ये 3/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2, ये आपका आंसर है. सो दिस इज योर आंसर. दिख रहा है ना? आई होप सो आपको दिख रहा है. ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ठीक है, उससे पहले हम इसका डायरेक्ट फार्मूला मेथड में भी करेंगे. यहाँ पे ये लिख लिए होगे तो पहले से फार्मूला मेथड पे यहाँ पे हम कर देते हैं. देखो सिंपल हो जाएगा शायद. z इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 4 - 3 आयोटा दिया है और इसका हमें रूट ओवर निकालना है. नहीं, रूट ओवर निकालना है. यहाँ z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है. ठीक है, ओके. तो वी नीड टू फाइंड आउट द रूट ओवर ऑफ z. सो व्हाट का मॉड ऑफ z? 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 16 + 9 25, मतलब 5. ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा. तो a है हमारा, a इज द रियल पार्ट. द रियल पार्ट ऑफ z विच इज a इज इक्वल्स टू, यहाँ है 4, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो कि है b इज इक्वल्स टू -3 है. सो इसी फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करने से भी होगा और x y सेपरेट निकालने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर x इज इक्वल्स टू देखोगे तो प्लस माइनस 1/√2, z प्लस a मतलब 5 + 4 9 का रूट ओवर मतलब 3. ठीक, तो हो गया कितना? प्लस माइनस 3/√2. ठीक, y इज इक्वल्स टू सिमिलरली ये -a मतलब 5 - 4 इज बेसिकली 1/√2 प्लस माइनस. फिर अभी तभी आप फिर ऐसे साइन में ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, समझ में आएगा. ये मेथड भी आपको साइन का ध्यान देना है. और एक क्वेश्चन करेंगे, इसको आप नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम रूट ओवर निकालेंगे. z इज इक्वल्स टू 9 + 40 आयोटा. वी नीड टू फाइंड अंडर रूट ऑफ z. तो हम देखो डायरेक्ट उसी मेथड से कर सकते हो. हम डायरेक्ट फार्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला मेथड यूज़ करते हैं. अगर फार्मूला आप यू कैन रिमेंबर द फार्मूला, देन यूज़ द फार्मूला मेथड, नो इशू. ओके, और यू कैन यूज़ द प्रीवियस मेथड. मैं डायरेक्ट फार्मूला मेथड पे ही कर देता हूँ इसको. सो बेसिकली देखना क्या है कि फास्ट निकालना है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि है 81 + 1600 का अंडर रूट, जो 1681 का रूट ओवर, और 1681 का रूट ओवर मतलब होता है 41 का स्क्वायर 1681 होता है. ठीक है, देन यहाँ a है आपका सिंपल 9 एंड b इज इक्वल्स टू 40 जो कि है ग्रेटर देन 0. यहाँ तक सिंपल है. तो x की जो फॉर्मूला है, x यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, तो प्लस माइनस सिंपल अंडर रूट ऑफ z प्लस a/2. सो इट विल बी प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ जेड मतलब 41, सॉरी अंडर रूट ऑफ जेड थोड़ी है, मॉडुलस ऑफ जेड 41 प्लस ए मतलब प्लस 9/2 इसका रूट ओवर 41 प्लस 9 इज 50/2 इज 25 का रूट ओवर जो कि है ±5, जो कि है ±5। ये एक्स की वैल्यू आ गया, वाई की वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस मॉड ऑफ जेड -a/2 इसका होल अंडर रूट, सो मॉड ऑफ जेड इज 41 -a इज -9/2 इसका पूरा अंडर रूट। तो ये कितना होता कितना है भाई, ये 41 - 9 इज 32/2 है 16 का रूट ओवर जो कि है 4, नहीं ±4, ठीक है। ये होता है आपका ±4, यहाँ प्लस माइनस दिया गया है तो ये सिंपल ±4 है। तो x की वैल्यू ±5, y की जो वैल्यू है ±4, सिंपल। हाँ, उसके बाद we need to choose the sign of x and y according to b is greater than 0, तो हमें चूज करना है सेम साइन। ओके, सेम साइन ऑफ x एंड y। तो ऑब्वियसली जो अंडर रूट ऑफ जेड होगा इज इक्वल टू सेम साइन होगा, मतलब 5 अगर प्लस होगा तो यहाँ +4 आयोटा और रूट ओवर ऑफ जेड इज इक्वल्स टू -5 -4 आयोटा। तो वी कैन राइट ±5 +4 आयोटा इज द आंसर। ठीक है, गॉट इट, नोट कर लो इसको। So here are some homework for you guys. Find the square root of this following questions. First is 7 - 24 iota, second is 15 iota -8, the third is 4ab -2 times square times iota, and the fourth is 1 plus iota times 3 plus 2 iota. इसको first multiply करोगे then find the square root. Okay, let us discuss the another topic, that is cube root of unity. Cube root of unity. Unity means 1. Okay, तो 1 का basically cube root. तो in the high school level you have been go through a questions that the degree of a polynomial is equals to the number of root, is equals to the number of root of that particular polynomial. So let me ask you a question. If x cube is equals to 1, then what is the value of x? So it is a polynomial, so we can, this is basically x cube minus 1 is equals to 0. It is a polynomial. Okay, and it is a polynomial of degree 3. It is a polynomial of degree 3, and it must have the 3 roots. It must have the 3 roots, and tell me the 3 roots. Okay, you can tell me the one value of x, for sure x is equals to 1 is the must, the 1 ka cube 1. And what about the others? What about the others root? What about the other values of x? So can you tell me? No. So now we need to find out the other values of x. देखो एक जो है वो रियल रूट है और बाकी जो एग्जिस्ट नहीं है, मतलब हम हाई स्कूल में नहीं पढ़े थे, क्लास 9-10 में, दोज आर द कॉम्प्लेक्स रूट। दिस इज ट्रू दैट जितना भी डिग्री होता है एक पॉलिनोमियल का, द नंबर ऑफ रूट्स इज सेम एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, और कुछ रियल रूट होता है और कुछ कॉम्प्लेक्स रूट, दोनों मिला के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के साथ सेम होता है। सो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 एक होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे। तो एक्स क्यूब -1 इज इक्वल्स टू
तो वी कैन पुट द फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस 1 cube is equals to 0. Now we can use the formula a cube minus b cube, and a cube minus b cube is what? A minus b into a square plus ab plus b square. Let me write the formula here. A cube minus b cube is equals to a minus b into a square plus ab plus b square. ठीक, so it will be x square plus x plus 1 is equals to 0. So here we divide into two parts. So x minus 1 is 0, or this x square plus x plus 1 is equals to 0. This equation gives x is equals to 1. And what about this? Now we need to solve this quadratic equations. And here a is equals to obviously 1, b is equals to 1, and c is equal to also 1. क्या किया गया इसको, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला. सो ऑब्वियसली जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इट विल बी डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो दिस इज 1 माइनस 4, दिस इज माइनस 3, विच इज लेस देन 0. दिस इज लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट नहीं है, बट कम्प्लेक्स रूट हो सकता है. सो यू कैन यूज आवर फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट बाय 2a ना, ओके, बाय 2a. सो हियर माइनस b इज माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac is 1 minus 4 by 2 times 1. So this will be minus 1 प्लस ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 बाय 2. सो वी कैन से दिस इज x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस दिस इज 3 आयोटा, रूट 3 आयोटा बाय 2. x is equals to minus 1 by 2 plus minus root 3 by 2 iota. इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें. So here are the two values. The first values is x is equals to minus 1 by 2 plus root 3 by 2 iota, और minus 1 by 2 minus root 3 by 2 iota, और एक वैल्यू है जो रियल वैल्यू है. These are the two complex value, and x is equals to 1. These are three values of, or these are three roots of unity. Okay, these are the three roots of unity. Okay, so cube roots of 1, this minus 1 by 2 plus root 3 by 2 iota, and minus 1 by 2 minus root 3 by 2 iota are three cube root of 1. ये 1 का 3 ठो क्यूब रूट है, ठीक है. एंड सो and two complex root are denoted as, and two complex roots are denoted as ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. सो एक नया टर्म आया आपके नज़र में. ओके, ये आप आई होप आप नोट कर लिए होंगे पहले से, ठीक. सो यहाँ पे जो ओमेगा होता है that is minus 1 by 2 plus root 3 by 2 iota, एंड जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो माइनस 1 by 2 माइनस रूट 3 by 2 आयोटा. इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये होगा. बेसिकली चेक कर देते हैं, अगर माइनस 1 by 2 प्लस रूट 3 by 2 आयोटा इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है चेक करते हैं. देखो फर्स्ट तो 1 by 4 इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है 3 by 4 आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 by 2
इंटू √3/2। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 माइनस 3/4 हो गया ये, एंड दिस विल बी ये तो प्लस है ना, 2 इंटू ए प्लस एक 2 कैंसिल, और यहाँ बचा -√3/2 -√3/2। एक आयोटा कहाँ छोड़ दिया मैंने, यहाँ आयोटा। सो इसको कैलकुलेट करें, 1 - 3 इज -2, -2/4 इज -1/2, प्लस माइनस माइनस √3/2 आयोटा इज इक्वल टू जो आपका ओमेगा स्क्वायर है। इसीलिए होता यही है कि अगर इसका स्क्वायर करोगे, देखो इस पर्टिकुलर चीज़ का स्क्वायर करोगे तो ये होगा, और इसका स्क्वायर करने से ये होगा। एक प्रॉपर्टीज है, एक दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज कि -1/2 प्लस √3/2 आयोटा का स्क्वायर करने से होता है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, एंड -1/2 माइनस √3/2 आयोटा इसका स्क्वायर करने से होता है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। So let us discuss some properties of cube root of unity. कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ये तो सिंपल है, नाम से ही पता लगे ओमेगा का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। और वी कैन से ओमेगा स्क्वायर का जो स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का जो स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब 1। ठीक है, और यहाँ पे जो हम किए थे इसका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओमेगा का जो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, ओमेगा भी ऐसे कुछ रिपीटेड पावर्स में होता है, मतलब फर्स्ट ओमेगा, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर नो प्रॉब्लम, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब 4 करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा ही है। ओमेगा अगर 5 करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज ओमेगा स्क्वायर। तो इसी तरह ओमेगा टू द पावर 3n होता है, ओमेगा टू द पावर क्यूब टू द पावर n इज इक्वल्स टू ये 1 ही होता है, और ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 के फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली दिस इज ओमेगा टू द पावर 3n इंटू ओमेगा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा, and omega 3n plus 2 is equals to omega 3n into omega square is equals to omega square। तो इसलिए ओमेगा की पावर कोई भी 3 के मल्टीपुल में है तो 1 होगा, तो 3 के मल्टीपुल प्लस 1 के फॉर्म में है तो ओमेगा टू द पावर n, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सिंपल फॉर्मूला कि ओमेगा टू द पावर 3n प्लस r इज इक्वल्स टू ओमेगा टू द पावर r इज इक्वल्स टू ओमेगा टू द पावर r। और क्या प्रॉपर्टीज हैं? देन थर्ड प्रॉपर्टीज इज they are conjugate to each other। okay, so omega the complex root of unity are conjugate to each other। so basically ओमेगा का जो कंजुगेट है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, एंड जो ओमेगा स्क्वायर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज इक्वल्स टू ओमेगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये हम प्रूव कर सकते हैं। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 की जगह तो 1, ओमेगा की वैल्यू कितना है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, तो इनको तीनों को अगर प्लस करेंगे तो √3/2 आयोटा प्लस माइनस है कैंसल,
तो 1 ये माइनस ऑफ -1 तो ये -1 है, 1 माइनस प्लस -1 इज 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बात हो सकता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये तीनों हम यहाँ से हम इसी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। ओके, इस फिफ्थ आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। ओमेगा की आर्गुमेंट क्या होगा? ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता है कि ओमेगा तो पता है, दिस इज -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। इसके अगर आर्गुमेंट निकालेंगे, दिस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस प्लस है द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फॉर्मूला है आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स का मॉड, दैट इज √3/2 बाय माइनस आपका मॉड 2 कैंसिल, माइनस √3 इसका मॉड √3। तो पाई माइनस tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 मतलब π/3 होता है, so this is 2π/3। तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/3 एंड आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ इज इक्वल्स टू, ये देखो इसका कॉन्जुगेट, ओमेगा कॉन्जुगेट लिख सकते हैं फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज। सो यू कैन से दिस इज -2π/3 फ्रॉम द फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला से? जो कॉन्जुगेट आर्गुमेंट वाला जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसी प्रॉपर्टीज से हम लिख सकते हैं। ओके, सो इसी क्लास में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑफ दिस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। So till then, bye bye, take care, see you in the next class.